So the today's topic is constructor. Okay. Say for example, I have a class, right? Class, and let me say the name of the class is, say for example, point. The name of the class is point, right? Point is a noun, right? Because it's a thing. Now, how do we define a point in the terms of has? How do we define point, a two-dimensional point, in terms of has? हाँ, जैसे rectangle has length and width. आपको बताया था ना कि मतलब आसान तरीका जो है इसको विजुलाइज करने का ये है कि आप हैज लगा के देखें कि उसके अंदर क्या क्या है, वही उसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, राइट? तो पॉइंट हैज नहीं, जो नहीं है वो नहीं, क्या है? पॉइंट हैज क्या कहूंगा मैं? पॉइंट का रेडियस क्या होता है बेटा? सर्किल का होता है ना। कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना? दो चीज होती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स आर मॉडल्ड बाय इंटीजर टाइप, ठीक है? सो आई विल से द पॉइंट हैज integer x as x coordinate and integer y as y coordinate, right? Correct. I want to keep x and y as private. Why I am keeping them private? Because I want to honor data hiding principle, right? So I have kept x and y as private. Now if x and y are private, then I will need public getter and setter methods around it, right? So I will say under public I have got, I will just put the comment and you assume that both x has a getter method and a setter method, and a y also has a getter and setter method. So we have a set of 4 methods in total. Okay? Getters and setters for x and y coordinates. ठीक है? ये हम जनरेट कर सकते हैं, हमने देखा है कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं आईडी में, कोड ब्लॉक्स में जनरेट कर सकते हैं, राइट? इसको हम जनरेट कर लेंगे, हाथ से टाइप करके लिखेंगे नहीं, ठीक है? So getter and setters will be generated. Now लेट मी डू इट पैरेलली इन कोड ब्लॉक्स, ठीक है? ताकि ये चीज आपकी जो अभी हमने ये बनाया है ये चीज अभी विजुलाइज हो जाए प्रॉपर्ली, राइट? सो लेट मी ओपन कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक्स। अगर लैपटॉप है तो आप भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है? वर्क स्पेस पे है, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, राइट? कंसोल एप्लीकेशन, एज ऑलवेज, गो, नेक्स्ट, C++, राइट? प्रोजेक्ट टाइटल, डेमो कंस्ट्रक्टर, ठीक है? डेमो कंस्ट्रक्टर, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. Let's say next, finish, and the project has been created with a main file that will be used for testing, right? Now I will go for the source. I will say file, new, class, and the name of the class is point, right? डिस्ट्रक्टर को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं डिस्ट्रक्टर पे नहीं आया, मैं कंस्ट्रक्टर पे आया हूँ. डिस्ट्रक्टर इज समथिंग विच इज जस्ट अपोजिट टू कंस्ट्रक्टर.
So once we are done with constructor, then we will look for destructor. Okay. So the name of the class is point, and here I will declare both the coordinates, right? Int x, let me add it, right? Int y, again I will add it, and these both are added as private variables. The scope is private, right? So as soon as I say create, it will ask me add this class to the current project. I will say yes. It will further ask me for few options. I will say okay. And you see we have got under headers point.h created, where I have got variables which are or x coordinate and the y coordinate representing x and y coordinate, int x and int y, which are private, the member variables of the class point. And for each member variable we have got one set of methods, which is getter and setter methods, right? So for x we have got getx to read the value of x and setx to change the value of x. Similarly for y coordinate we have got get_y to read the value of y and set y to change the value of y, right? And then you will see something like this. This is called a constructor, right? This is a constructor. What is so unique about this? Just looking at the constructor, what you can infer, it doesn't have a return type, right? It looks like a method. It looks like a method declaration, right? It looks like a method declaration because it has a parenthesis, right? But it doesn't have a return type. Even I won't put void. Even I won't put void. So the first rule is, and more if I try to understand more, it has the same name as the name of the class, exactly in the same case as well. If p is capital, then here also point p is capital, but this is point class and this is point constructor, the constructor of the point class, right? Because it has parentheses. It works more or less just like a method. Okay, it works more or less just like a method. It looks like a method, however it's not a method. I will call it a constructor. I've given a new name to it, right? So so constructor, first thing is that has same name as the class name. Constructor has got the same name as the name of the class. That means if the name of the class is point, the constructor will be point, right? It will be point like this, point, right? Correct. If I am going for the declaration, I will just put a semicolon. If I am going for the implementation, then I will put a curly braces start and end to indicate the body of the constructor, just like the method has. ठीक है? तो बाकी सब चीजें मेथड की तरह ही रहेंगी. The only difference is that point has the constructor has the same name as the name of the class, exactly same name in the same case. ठीक है? The second difference that you will notice is the constructor does not have a return type. It does not have a return type. So constructor does not have a return type. ठीक है? Not even void. ठीक है? Not even void. ठीक है, क्योंकि void भी रिटर्न टाइप होता है, भले उसका उसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बट void इज अ रिटर्न टाइप. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, राइट? तो सिंपली ऐसा लिखा जाएगा पॉइंट. अगर पॉइंट क्लास का नाम है तो पॉइंट फंक्शंस की तरह ब्रैकेट ओपन होंगे, क्लोज होंगे,
बॉडी ओपन होगी, क्लोज होगी, ठीक है। और जब इंटरफेस की हम बात करें, इंटरफेस का मतलब हेडर फाइल जो बन रही है हमारी, हेडर फाइल point.h, तो उसमें सेमी कॉलन से डिक्लेरेशन टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, डिक्लेरेशन टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, करेक्ट। नाउ इफ यू सी point.cpp, यहां पे इसकी बॉडी मौजूद है ना। क्या कह रहा है, पहली जो पॉइंट है वो पॉइंट क्लास है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी वॉट एवर दिस इज बिलोंग्स टू द पॉइंट क्लास, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। इसकी बॉडी एम्प्टी है, ठीक है, इसकी बॉडी एम्प्टी है क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है, अभी यहाँ आईडी से बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है, अगर आईडी से हम डिलीट कर देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट जनरेट होगा, तब कंपाइलर इसको बाय डिफॉल्ट जनरेट करके इंसर्ट करेगा। अभी हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब जब पॉइंट मेन क्लास में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पॉइंट से p1, राइट, करेक्ट। ये जो पॉइंट p1 है, इसके कहने का मतलब है कि पॉइंट p1, आप कुछ इसका सिंटेक्स ऐसे समझो, यानी पॉइंट इज द नेम ऑफ द क्लास, टाइप डिक्लेरेशन, एंड p1 इज द रेफरेंस वेरिएबल, एंड अपॉन p1 व्हाइल क्रिएशन ऑफ द p1, यानी p1 के लिए जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, I am indicating that call a constructor which is non-parameterized constructor that doesn't take an argument, a no or constructor, call a no or constructor। इसका मतलब क्या हुआ, call a new or no or constructor, जिस कंस्ट्रक्टर में हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। जैसे मेथड्स में आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वैसे कंस्ट्रक्टर में भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी मेथड्स की तरह, इट लुक्स लाइक अ मेथड, ठीक है, in most of the time it will behave like a method, ठीक है, the differences we will see, ठीक है, the differences we will see, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम करो कि ये ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट क्लास टाइप डिक्लेरेशन है, p1 रेफरेंस वेरिएबल है, और जब p1 रेफरेंस वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट बने तो वो ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बने जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, राइट, करेक्ट। फॉर अस इट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। अगर इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास कर देते, फॉर एग्जांपल हम इसमें पास करते से int x comma int y, the two fields और the two coordinates उनके लिए, तो क्या होता है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है, ठीक है, राइट, इंडिकेटिंग इट्स अ टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तब हम यहाँ पे जब हम पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते p1, तो कुछ हम ऐसे करते हैं उसको, फिर 3,6 फॉर एग्जाम्पल, तो हम ऐसे करते हैं, राइट, करेक्ट, तब हम इसको ऐसे करते अगर टू आर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। बट बिकॉज दिस हैज बीन जनरेटेड बाय डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज अ नो आर कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं दे रहा है। तो इसको हम रीड करने के लिए समझेंगे कि ये कुछ ऐसा है, लेकिन सिंटेक्स में हमें ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम p1 पे पॉइंट p1 पे सेमीकोलन टर्मिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब p1 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो नो और कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा। Now what is the purpose of the constructor? The purpose of the constructor is to initialize the state of the object, ठीक है। The purpose of the constructor is to initialize the state of the object। state of the object का मतलब क्या होता है, the purpose of the constructor is to initialize the state of the object। state का मतलब क्या होता है, the x and y coordinates, उनकी एक टाइम पे जो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट बन रहा है, हम एक ग्राफ पे अगर पॉइंट
ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पॉइंट का कोई एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, ठीक है, फिजिकल पेपर पर, राइट। उसी को हम जब सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उस एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज जो हम कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं स्टेट की वैल्यूज दे रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 7, इस तरह हम दे रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर इनिशियलाइजिंग द स्टेट ऑफ द वेरिएबल। So the constructor are meant to initialize the state of the variable, state of the object, not the variable, sorry, object, state of the object, ठीक है, यानी उनकी फील्ड्स को, करेक्ट। लेकिन अभी जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो किसी भी स्टेट को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज डिफॉल्ट का मतलब उसको नहीं पता कि कितने स्टेट हैं, कितने स्टेट को आप इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट में 2 स्टेट है एक्स एंड वाई, हो सकता है मैं सिर्फ एक्स को इनिशियलाइज करना चाहूँ, हो सकता है मैं एक्स वाई दोनों को इनिशियलाइज करना चाहूँ, राइट। बट समवेयर वी हैव टू सेटल फॉर अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, मैं स्टेट को इनिशियलाइज नहीं करूंगा, स्टेट को इनिशियलाइज करना है तो तुम अपना कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है। सो दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फाइन। एंड सो when we are creating an object with this line number 7, so it means we are creating a reference variable p1 that is pointing to an object which is created by calling a no arg constructor, that means नॉन पैरामीटराइज हम कहते हैं जहाँ डिक्लेरेशन होता है, यहाँ से कुछ पास करेंगे तो उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सेम बात होगी, नॉन पैरामीटराइज क्लाइंट साइड में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, को कॉल करके बन रहा है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? इतने कोड को हम कंपाइल करके एक बार देख ले कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बिल्ड में बिल्ड एंड रन, द पॉइंट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्या करना है हमें, इंक्लूड नहीं करिए अपनी फाइल को, कहाँ करना है, मेन में, ठीक है। इसका मतलब कोड हमारा कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है अभी तक के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट p1 डॉट एक्स इज इक्वल टू, p1 में क्या है, x भी है y भी है, p1 डॉट एक्स इज इक्वल टू p1 डॉट क्या करूं मैं, एक्स वाई तो प्राइवेट है, रेड से दिख रहा है आपको, है ना, गेट एक्स, गेट एक्स, सेट एक्स चेंज करने के लिए होता है, गेट एक्स फॉर रीडिंग, राइट, एंड लाइन, ठीक है। सिमिलरली एक लाइन और लिखता हूं मैं, p1 डॉट गेट, p1 डॉट y इज इक्वल टू p1 डॉट गेट y, करेक्ट। रन कर लें इसको एक बार, क्या देखते हैं क्या आउटपुट आता है, वैसे क्या लगता है वो क्या आउटपुट आना चाहिए, एक्स वाई अभी तक इनिशियलाइज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, राइट। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सब गार्बेज वैल्यू, देखिए एस की वैल्यू 82 आ रही है, वाई की वैल्यू 0 आ रही है ना, गार्बेज वैल्यू है, राइट। अब हमें कायदे से करना क्या चाहिए था, इससे पहले हमें सेट करना चाहिए था, राइट। तब हम एक्स और वाई की वैल्यू को रीड करते, तो हमें क्या कहना चाहिए था, p1 डॉट सेट एक्स, और उसमें वैल्यू हम पास करते, से फॉर एग्जांपल 10 पास कर दिया हमने, p1 डॉट सेट वाई, वैल्यू से हमने पास कर दिया 15 पास कर दिया, तो x इज 10 एंड y इज 15, राइट। अब अगर प्रिंट होगा तो क्या होगा, 10 और 15 प्रिंट होना चाहिए, राइट, 10 और 15 प्रिंट होना चाहिए। बिल्ड में बिल्ड एंड रन, 10 एंड 15 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सिचुएशन इनिशियलाइज
ऐसे एज्यूम करिए सिचुएशन को, आप जब स्क्रीन पर या ग्राफ पर कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं तो उस पॉइंट का एक्स एंड वाई वैल्यू कुछ तो होता है, गार्बेज तो नहीं होता है, कुछ होता है। से मान लीजिए 5 और 7 हो गया, 5 और 7 हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, उस पॉइंट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके मूव करा। जब मूव करा तो उस पॉइंट की एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 10 और 15 हो गया, राइट। तो ये जो सेट एक्स और सेट वाई को मैं यूज कर रहा हूँ, इसका यूज आइडियली मुझे तब करना चाहिए जब ये वाली सिचुएशन दूसरी वाली आती है, जब पॉइंट को हमें कट करके मूव करना है। लेकिन पॉइंट बना तो यहाँ पर है, लाइन नंबर 9 पे बना है ना। जब लाइन नंबर 9 पे बना है उस वक्त तो पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गार्बेज वैल्यू होल्ड करते हैं, जिसको नहीं होल्ड करना चाहिए, राइट। तो हमें कायदे से क्या करना चाहिए कि पॉइंट को का कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जो एक्स और वाई वाई की वैल्यू को एक्सेप्ट करे, ले, और लेके उसको पॉइंट के स्टेट को इनिशियलाइज करे। और वही काम भी है कंस्ट्रक्टर का, टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब मैं क्या कहूंगा कि पॉइंट का ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको मैं क्या कहूंगा कि भाई एक और कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ जी, एक और कंस्ट्रक्टर, और इसको मैं कहूंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ये कहाँ डिक्लेयर हुआ, ये इंटरफेस में डिक्लेयर हुआ। तो हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में ले जाके जोड़ना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, पॉइंट डॉट सीपीपी में, राइट। पॉइंट डॉट सीपीपी में आके हम क्या कहेंगे, पॉइंट पॉइंट क्लास का point constructor, and this constructor is going to take int x comma int y, right, correct। और एक्चुअली x और y सेम नेम हो गया, राइट, जो कि x और y कोऑर्डिनेट का नाम है पॉइंट क्लास के। ये देखो जो कोऑर्डिनेट हमने दिए है ना, x एंड y सेम नेम हो गया है ना। इसको बोलते हैं शेडोइंग प्रॉब्लम, कि आपका पैरामीटर में जो मेथड है वो मेथड लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, राइट। तो मेथड लोकल वेरिएबल शेडो कर रहा है स्टेट वेरिएबल को, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो इसका ये है कि हम इसका नाम चेंज कर दें, एक्स वाई की जगह कुछ और नाम दे दें, ए बी दे दें, ठीक है। सेम भी रख सकते हैं, सेम रखेंगे तो क्या होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ए और बी कर दे रहा हूँ, राइट, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। अब मेन डॉट सीपीपी में क्या करेंगे हम, सॉरी पॉइंट डॉट सीपीपी में क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए बी कर दे रहे हैं, ए एंड बी। ऐसा करने से क्या होगा, फिर जब हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, मामला क्लियर है। वरना क्या होता, x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई, तो कैसे पता चलता कौन सा x स्टेट वाला है, कौन सा x मेथड लोकल वाला है, या पर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, राइट, नहीं पता चलता, राइट। इसी को शेडोइंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल शेडोइंग प्रॉब्लम को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, हालांकि ये सही तरीका नहीं है करने का, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीके से भी आगे करेंगे। तो हर तरह से हम चल रहे हैं, पहले तो नॉर्मल तरीके से चलेंगे जो हमें इजी और कन्वीनियंट लग रहा है, फिर धीरे धीरे हम उसको कोड को रिफैक्टर करते जाएंगे आगे, जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाएगी उसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये सॉल्यूशन है, राइट। पॉइंट डॉट एच मेरे ख्याल से सेव नहीं है, इसको भी सेव कर दे, कंट्रोल एस, ओके। पॉइंट डॉट सीपीपी सेव हो गई, राइट। अब मेन डॉट सीपीपी में आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट डिक्लेयर कर दे रहा हूं, पॉइंट P2, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं वो टू आर्ग कंस्ट्रक्टर, दो आर्गुमेंट लेने वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं, विच इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर, वो लेके कर रहा हूं, राइट। तो मैंने कहा कि इनिशियल इसकी वैल्यू 5,7 है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने यूज कर लिया, राइट।
अब बिना इस P2 के लिए बिना सेट एक्स सेट वाई लगाए मैं डायरेक्टली ये दो लाइन कॉल कर रहा हूं, ठीक है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। ये P2 डॉट एक्स एंड P2 डॉट वाई इज इक्वल टू P2 डॉट गेट एक्स एंड P2 डॉट गेट वाई, ठीक है, करेक्ट। पहले केस में क्या करा था, P1 जो बनाया था वो नो और कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, नॉन पैरामीटराइज वन, और फिर सेटर मेथड्स का यूज करके उसके स्टेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करा था। बाद में ऑब्जेक्ट बनने के बाद P1 जो रेफरेंस वेरिएबल है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया था, उसके बनने के बाद हमने हमने सेटर मेथड कॉल करके इस ऑब्जेक्ट के स्टेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा था, ठीक है। ये वही सिचुएशन है जब आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करे वाली सिचुएशन, ठीक है, और उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा। दूसरे केस में हमने क्या करा है, जब पॉइंट P2 बनाया तो दो आर कंस्ट्रक्टर लिया जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेने की वजह से इसके दोनों पैरामीटर उसके ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ही एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को सेट कर देंगे 5 एंड 7 से। तो ये जो डिफिनेशन है पॉइंट P2 की, है ना, जो कंस्ट्रक्टर की है, दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसी लाइन में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, इसी लाइन में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, राइट। यहाँ भी इस लाइन में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे P1 के एक्स एंड वाई को हमने इनिशियलाइज नहीं करा था उस टाइम पर, बाद में करा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई सेट एक्स सेट वाई नहीं लगाया P2 के लिए, सिंपली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा उसी वक्त 5 7 देके हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी P2 डॉट गेट एक्स को 7 प्रिंट करना चाहिए, 5 प्रिंट करना चाहिए, और P2 डॉट गेट वाई को 7 प्रिंट करना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्लियर है यहाँ तक? चला के देख लेते हैं एक बार। देखिए P1 के लिए 10 15 जो आया था वो सेट एक्स सेट वाई से आया था, और P2 के लिए एक्स और वाई जो 5 और 7 इनिशियलाइज हुआ वो किससे हुआ, वो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हुआ, राइट, वो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हुआ, करेक्ट, ठीक। यहाँ तक क्लियर है भाई? हेडर में मैंने करा तो है डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हो? ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लाइंट कोड पर, मेन डॉट सीपीपी में ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज की इनिशियलाइजेशन यहाँ होगा। हम पॉइंट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट सिर्फ स्पेसिफिकेशन है, चाहे वो पॉइंट एच है, वो इंटरफेस है उसका, यानी सिग्नेचर्स बता रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट बता रहा है, और पॉइंट डॉट सीपीपी उसका इम्प्लीमेंटेशन बता रही है, देखो बॉडी है इसकी। लेकिन ये दोनों मिल करके पॉइंट एच और पॉइंट सीपीपी मिलके पॉइंट को बना रहे हैं, ठीक है। एक चीज को दो पार्ट में, एक क्लास को दो पार्ट में फाड़ा गया है। एच जो है उसका एक तरह से इंटरफेस है, जो सिर्फ ये बताता है कि इसमें कौन कौन से मेथड होंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्टर होंगे, उनकी सिग्नेचर होगी, राइट। और सीपीपी जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, यानी पॉइंट डॉट एच जो है वो अब्स्ट्रैक्शन है, एक हाई लेवल की चीज जो सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, कि टू आर कंस्ट्रक्टर होगा तो वो दो वेरिएबल लेगा, क्या लेगा, ए और बी लेगा, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, ये डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉइंट डॉट सीपीपी में आ गया, लेकिन ये दोनों मिल करके एक एंटिटी को बता रहे हैं आपको, राइट। तो एक्चुअली यूज चूज का हो रहा है वो उस कोड से बाहर होगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कोड से बाहर होगा, वो तो उसका डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन था। तो यूज हम करेंगे कहीं और पे, हमने मेन में करा, किसी और क्लास में किसी मेथड में यूज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो यहाँ पे अलाउड होता करना, तो आप क्या करते, ए की वैल्यू देते, बी की वैल्यू देते, तो क्या सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ए बी की वैल्यू सेम रह जाती क्या?
हम तो यहाँ पे जब हम मेन डॉट सीपीपी बना रहे हैं तो P1 P2 P3 P5 P100 P1000 बना सकते हैं, है ना। सबकी एक्स एंड वाई की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। तो वहां पे ना देके हम यहाँ पे देंगे ना उसको। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये जो लिखा है इसको कैसे पता कि कैसे वो कर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रखा है? इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेन डॉट सीपीपी में आप जा रहे हैं। मेन डॉट सीपीपी में जो ये देख रहा है, किसको देख रहा है? इंटरफेस को देख रहा है, पॉइंट डॉट एच को देख रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट डॉट एच में आ रहा है, मेन डॉट सीपीपी से आ रहा है ना। फाइन। हम हमारा क्लाइंट कोड इसको देख रहा है, ठीक है। अब हम रन करने की कोशिश करते हैं इसको। अनडिफाइंड रेफरेंस टू पॉइंट पॉइंट इंट इंट, क्या कह रहा है? ये जो रेफरेंस आप दे रहे हो ना, ये अनडिफाइंड है पॉइंट इंट इंट के लिए। इसका मतलब ये गया यहाँ पर, यहाँ पे जाने के बाद इसने देखा कि इसने इंक्लूड कर रखी है, मतलब पॉइंट डॉट एच से बना रखा है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो ये जाएगा, चेक करेगा उसी नाम से सीपीपी फाइल के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इसको मिला नहीं। जब मिला नहीं तो क्लाइंट को रन टाइम जो इन्वायरमेंट है वो बता देगा, भाई ये जो तुम कह रहे हो, जिस 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 कंस्ट्रक्टर को तुम डिफर करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अनडिफाइंड, उसका इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। जब इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करके इसका कोड रन करूं, है ना। तो वो आपको कंपाइलेशन में एरर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। मैं उसको वापस ला देता हूँ। हाँ, सेम होंगे, सेम होंगे। पॉइंट क्लास है, उसी का कन्वेंशन है ये, कि उसी का हेडर जो होगा पॉइंट डॉट एच से होगा, और पॉइंट क्लास है तो पॉइंट डॉट सीपीपी तो खैर बनता ही है, सी प्लस प्लस, ठीक है, करेक्ट। एक्सटेंशन सीपी मतलब सी प्लस प्लस का कोड, ठीक है। एक्चुअली देखो, अब नॉर्मली क्या होता है ना कि पॉइंट डॉट सीपीपी एक ही फाइल बननी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आगे आप देखोगे कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन से अलग करने का अपना फायदा होता है, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन को अलग करने के लिए सेपरेटली हेडर फाइल बनाई गई है, ठीक। इसलिए आपको दो जगह चीज को मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन इस दो जगह चीज को मैनेज करने का फायदा है, जब रियल एप्लीकेशन में आप डेवलप करोगे तो सिर्फ हेडर फाइल को आप इस क्लाइंट कोड के साथ रखोगे, है ना। इम्प्लीमेंटेशन, लंबे लंबे इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे कोड हो सकते हैं, वो कंपाइल्ड कोड अगर साथ में आपने इंक्लूड कर दिया तो चलेगा। यानी रियल इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लाइंट को, एक्चुअल जो आपका कस्टमर है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कल को इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हुआ तो आप उसकी कंपाइल्ड फाइल उठा के रिप्लेस कर दोगे, इंटरफेस चेंज नहीं होगा। यानी जिस तरह से क्लाइंट कोड में मेथड चल रहा था उसी नाम से उसी सिग्नेचर से चलेगा, तो आपका कोड जो है ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आइंदा के लिए ये काम चल रहा है, ये जो चल रहा है ना ये आइंदा के लिए चल रहा है। जो मेंटेनेंस की मैंने बात करी, जो 80% आपका एफर्ट लेगा, ठीक है, ये उसके लिए चल रहा है ये चीज, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज आप क्लाउड बेस्ड किसी भी उसमें जाओ तो वहां तो आपसे नहीं कहता ना सेपरेट करो, हेडर को सेपरेट करो और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करो, नहीं कहता है, ठीक है। फाइन। अच्छा, ये जो पॉइंट हमने डिफाइन करा है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल कमेंट कमेंट कर दे रहा हूँ। जो दो आर्ग वाला है पैरामीटराइज, तो कमेंट कर दिया मैंने। मेन डॉट सीपीपी में जो है, सॉरी पॉइंट डॉट सीपीपी में जो है, इसको भी उठा के मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट कमेंट कर दिया। अब ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो पहले मेन डॉट सीपीपी में है जो है, ये वाला कोड काम नहीं करेगा। यानी इसको हमें, अगर हम इसको रन करना चाहेंगे बिल्ड में, बिल्ड एंड रन, तो ये हमें कंपाइलेशन एरर देगा, नो मैचिंग फंक्शन कॉल, है ना, ये दिखा रहा है, राइट। तो मैंने क्या करा, इसको हटा करके ऐसे छोड़ दिया। अब अगर रन करूंगा तो क्या होगा, रन तो कट जाएगा लेकिन हमें P2 के लिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट होकर के मिलेगी, राइट। P2 के लिए गार्बेज वैल्यू मिली, 8 मिला, 0 मिला, राइट। 8 इज अ गार्बेज वैल्यू, राइट।
एस की वैल्यू, ठीक है। assuming we have got one constructor which doesn't have a argument, ठीक है। भाई पीछे वाले जरा शांति बनाए रखें, इधर पूरी सीट्स खाली है, आप इसको छोड़ के पीछे बैठे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आप है। आई डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम जो पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ने देंगे, ठीक है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस फिर अच्छे नहीं होंगे, फिर एकदम शांति बना के रखेंगे, ठीक है। और नहीं तो पढ़ना है तो कायदे से इधर आओ, जगह है इधर, इधर बैठो और देखो और पढ़ो, ठीक है। कल को वाइवा में मत कहना कि नंबर कम क्यों आए, फेल क्यों हुए और एग्जाम में फेल क्यों हुए, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। फाइन, अब देखो क्या हो रहा है, इसको मैंने क्या बोला, यहाँ कमेंट भी लिख कर क्या रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो जनरेट हुआ है ये आईडीई ने जनरेट किया है, कोड ब्लॉक ने जनरेट किया है। अगर डिफॉल्ट है तो इसको कंपाइलर को जनरेट करना चाहिए था ना। तो मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, हटा दिया मैंने। पॉइंट डॉट सीपीपी में इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, कमेंट कर दिया, हटा दिया। अब आइडियली मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर दिख नहीं रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्टर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन मेन डॉट सीपीपी में यहाँ हमें पता है कि ये नो आर कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो यहाँ पे कॉल हो रहा था, राइट। P2 के लिए भी वही हो रहा था, राइट। अब देखिए क्या ये कोड अब चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में बिल्ड में जाके बिल्ड एंड रन करते हैं, कोड चल रहा है, कोड चल रहा है। इसका मतलब जिस चीज को मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहा हूं वो एक्चुअली कंपाइलर इंसर्ट कर रहा है। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो उसको कंपाइलर इंसर्ट कर रखा है, कंपाइलर ने इंसर्ट कर रखा है, वो आपको कोड में अब नहीं दिखेगा कंपाइलर ने, लेकिन जब इसकी फाइल को कंपाइल करी तो उसने इंसर्ट कर दी, ठीक है, जो आपको विजिबल नहीं है। यहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, ये वाला भी कमेंटेड है, राइट। नो आर्गुमेंट भी वाला भी नहीं है, यहाँ पर डिलीट कर रखा है मैंने, ठीक है। तो अपेरेंटली हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर पॉइंट क्लास के लिए नहीं है, न हेडर फाइल के डिक्लेरेशन में है, न पॉइंट डॉट सीपीपी के इम्प्लीमेंटेशन में है, लेकिन कंपाइलर इसको फिर भी इंसर्ट कर रहा है, इसलिए हमारा मेन डॉट सीपीपी में जो नो और कंस्ट्रक्टर कॉल है वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आपने देखा था कि जब आपने कोड को जनरेट किया था आईडी को यूज करके, तो जनरेशन के टाइम पे पॉइंट क्लास ऑटोमेटिकली इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर जो जनरेट कर दिया था वो आईडी ने जनरेट करा था, जस्ट टू हेल्प यू कि आप विजुलाइज कर सके कि ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो क्या कर रहा है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली है, राइट, करेक्ट, ठीक है। देखो अब इसको मैंने ला दिया तो भी देखो कोड हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड वैसे ही चलेगा, ये कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट, क्या क्लियर है ये बात। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मान लो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपाइलर इंसर्ट करेगा, ठीक है, कंपाइलर इंसर्ट करेगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, विच इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी हमने देखा कि कंपाइलर इंसर्ट करता है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आईडी की हेल्प हमको नहीं चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर देगा, राइट। प्लस हम अपनी तरफ से ये टू आर कंस्ट्रक्टर भी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डाल रहे हैं, टू आर कंस्ट्रक्टर भी डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे टू आर कंस्ट्रक्टर डाला है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डॉट सीपीपी में जाकर के इसको छोड़ देते हैं, ये जो चीज है टू आर कंस्ट्रक्टर वाली, इसको हम क्या करेंगे, इसके कमेंट को हमने हटा दिया, राइट। नो आर कंस्ट्रक्टर के कमेंट को नहीं हटाया क्योंकि वो हम समझ रहे हैं कि कंपाइलर इंसर्ट कर रहा है, वहां भी करेगा यहाँ भी करेगा, इंटरफेस में भी करेगा और इंप्लीमेंटेशन में भी करेगा, यानी हेडर फाइल में भी करेगा, डॉट सीपीपी में भी करेगा, राइट, हम अज्यूम कर रहे हैं। अब ध्यान दो,
मेन डॉट सीपीपी में आ रहे हैं हम। कॉल क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है P1 P2 के लिए? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चला के देखिए क्या होगा, बताओ। गार्बेज वैल्यू, अच्छा देखो क्या होता है। नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर पॉइंट पॉइंट एम्प्टी। पॉइंट का ब्रैकेट एम्प्टी है, यानी क्या कह रहा है कि जिसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ रहे थे उसका कोई भी मैचिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मौजूद है। ये कह रहा है ना? क्यों कह रहा है? क्योंकि अब आपने क्या करा है, आपने एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अपने तरफ से प्रोवाइड कर दिया है। और जब आप अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देंगे, नो मैटर व्हाट, वन आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, व्हाटएवर, तो कंपाइलर कहेगा कि बॉस नाउ यू आर द बॉस। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर, नॉट इवन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुमने दो और कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो अब मैं अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा। इसलिए अब आपको कोड में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर काम करना बंद कर देगा, विच इज द नो और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आपको इसको चलाना है तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 2,3 से मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनिशियलाइज करा 5,7 से, राइट? अब जाके ये कोड आपका चलेगा। ठीक है, चला के देखिए एक बार, कोई डाउट तो नहीं है? चल रहा है अब 10, 15, 5, 7। 10, 15 क्यों है? पहले 2, 3 इनिशियलाइज हुआ था, लेकिन बाद में सेटर से हमने 10, 15 कर दिया है ना, तो ओवरराइड कर दिया उसको। जैसे एक पॉइंट हमने बनाया, फिर पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर दिया। पहला पॉइंट 2, 3 पे बनाया, फिर सिलेक्ट करके 10, 15 में मूव कर दिया सेटर यूज करके, तो मूव हो गया। तो जो हम प्रिंट कर रहे हैं मूव होने के बाद प्रिंट कर रहे हैं, तो नई वैल्यू जो 10, 15 है उसने प्रिंट कर दिया। इसकी 5, 7 थी, हमने मूव नहीं करा तो इसकी 5, 7 ही प्रिंट करा उसने, राइट? करेक्ट? Now I want to say that just for the sake of convenience, I want to say that if I do not provide an initial coordinate x and y, some value, say like यहाँ पे मैंने 2, 3 पास करा है ना, 2, 3 अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो ओरिजिन जिसको 0, 0 कहते हैं, 0, 0 पे बन जाए वो पॉइंट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट किस पे बन जाए? 0, 0 पे। तो अब हमें नो और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। अगर टू और कंस्ट्रक्टर ही होता तो वो नो और कंस्ट्रक्टर एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता, लेकिन टू और कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं आया है। अब हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, अब हमें वो खुद से अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हेडर फाइल में गए और हमने कहा कि भाई जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब उसको हम डिफॉल्ट नहीं कहेंगे क्योंकि कंपाइलर इंसर्ट नहीं कर रहा है, अब हम उसको नो और कंस्ट्रक्टर कहेंगे। दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, क्योंकि अब हम बना रहे हैं उसको, है ना? इट्स नो मोर अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट तब होता है जब कंपाइलर उसकी एक्सेस में किसी भी कंस्ट्रक्टर के एक्सेस में इंसर्ट करता है कंस्ट्रक्टर को, राइट? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम खुद बना रहे हैं, तो अब क्या बोलेंगे, पॉइंट, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, राइट? एंड inside I will write the code x is equal to 0, y is equal to 0। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हेडर फाइल है, तो यहाँ पे हमें इंप्लीमेंटेशन नहीं देना चाहिए, राइट? हमें इसको सेमी कॉलन से यहाँ टर्मिनेट करना चाहिए। ये इंप्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ पर, पॉइंट डॉट सीपीपी में, यानी इस जगह। ठीक है, करेक्ट? जस्ट सेकंड, खत्म कर, या तो क्लियर है? किसी क्लास है भी अभी आ रहे हैं, बात करें क्या? लेफ्ट 2 मिनट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अब मेन में जा रहे हैं। मेन में जाने के बाद से फॉर एग्जांपल P1 के लिए मैंने ये रखा है, P2 के लिए अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब बताओ क्या कोड कंपाइल करेगा? कोड कंपाइल करेगा। P2 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा?
0 प्रिंट करेगा। P1 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 10 15। ठीक है, बिल्ड करेक्ट, सही है। तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ गए, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ गए, और एक चीज जो मैंने पॉइंट आउट नहीं की, आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी समझ गए। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ना, जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती थी, वैसे क्या है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ठीक है, clear है guys? So we can overload the constructor also, because here we have got two constructors with different parameters, and this is what is called as overloading. If this would have been a method, we would have called it a method overloading. If this is a function, if this is a constructor, then I will call it a constructor overloading. Correct? ठीक है, सेव कर रहे हैं।